ओके, सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। राइट, चलो फटाफट देख लेते हैं। यहाँ से आ गया तो रूट एक्स मेरा आ गया था रूट टू प्लस वन, तो वन अपॉन रूट एक्स आ जाएगा वन अपॉन रूट टू प्लस वन। फिर यहाँ पे रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन इंटू वन, दैट इज रूट टू माइनस वन, whole divide by root 2 plus 1 into root 2 minus 1, that will be 2 minus 1. 2 minus 1 is nothing but a 1, so this is root 2 minus 1. So my 1 upon root x is equal to root 2 minus 1. अब मुझे फाइंड करना है रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स या रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स. So root x minus 1 upon root x will be, what is the value of root x? So my root x is root 2 plus 1. So I'll put plus root 2 plus 1 first. Then minus of 1 upon root x, 1 upon root x is root 2 minus 1. So it is root 2 minus 1. Root 2 minus root 2 is 0. 1 plus 1 is 2. Right. So my final answer is 2. Or 0 plus 2 is 2. So let us write one more step. So 0 plus 2 will be equal to 2. So my final answer will be 2. Is it clear? Let me repeat it once again. एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ. Right. एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, फिर आपको जो भी डाउट्स हैं आप पूछें. ओके, सो आपको क्वेश्चन में दिया है x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, देन यू हैव टू फाइंड रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x. तो जब भी रूट x फाइंड करना हो, जब भी किसी भी इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, व्हाट इज दिस, ये फॉर्मूला बुक में कितनी बार लिखोगे? 5 बार. ओके, क्या लिखना है? अगर अंडर रूट ऑफ a प्लस 2 रूट b हो, क्या हो? a प्लस 2 रूट b या a माइनस 2 रूट b. तो हम क्या करेंगे? b के ऐसे फैक्टर निकालेंगे कि जिनका सम हो a. b के ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिनका सम हो a. तो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 है, जिसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है. तो 2 के ऐसे फैक्टर निकालूंगा जिसका सम हो 3. तो 2 के ऐसे फैक्टर कौन से हैं? 2 एंड 1. उनका सम क्या हो रहा है? 3. यस. तो 3 को मैं लिखूंगा 2 प्लस 1 और 2 को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूंगा रूट 2 इंटू रूट 1. The moment I will convert b into its factors and a as sum of those factors, this equation will be converted to a plus b whole square or a minus b whole square. यहाँ पे बीच में प्लस है इसलिए वो a plus b whole square हो रहा है. जब माइनस होगा तो a minus b whole square होगा. So if we simplify this, this will be your root 2 plus 1 whole square. So if your x is equal to root 2 plus 1 whole square, what will be your root x? If square is coming to this side, your root x will be definitely root 2 plus 1, isn't it? Now if you know root x, just you have to find 1 upon root x. It is damn easy. Already हमने किया है 1 upon root 2 plus 1. Just हमें उसका conjugate के साथ multiply and divide. So it is root 2 minus 1 divided by 2 minus 1. 2 minus 1 is 1 and final answer is root 2 minus 1. अब इन दोनों का हमें करना है subtraction, right? तो उन दोनों का subtraction कर दिया तो root 2 cancel, plus 1 2. So final answer is 2. So is it clear everyone? क्या किसी को डाउट है? थोड़ा भी, कुछ भी? Anyone? Okay, so Nitin is having some doubt. So let us clarify that first. Yes, Nitin, you are unmuted now. Sir, I have done this question with a different method. Okay. Sir, since x is equal to 3 plus 2 root 2, Okay. so we can find 1 by x. So 1 by x will be equal to 3 minus 2 root 2 and yes. then I have found root x minus 1 by root x. And how you have found root x minus 1 by root x with help of x minus 1 by x? Sir, अभी x हमें 3 plus 2 root 2 है sir. Okay. तो उसका 1 upon x आपको मैंने मिला. Wait, 3 square is 9 and this is 8. So definitely 1 upon x will be your 3 minus 2 root 2, isn't it? हाँ sir. चलो इसके बाद आपने क्या किया था? सर अभी मैंने 3 plus 2 root 2 को होल स्क्वायर रूट किया, माइनस 3 minus 2 root 2 को होल स्क्वायर रूट किया. हाँ, पर इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगी? स्क्वायर रूट ऑफ सर दिस वो माइनस मैंने दिस. इसके बाद पावर दे दिया सिंपलीफिकेशन. सर 3. सर हाफ का पावर दे दिया सर 3 to the power 1/2 वैसे. चलो तो वो मैंने हाफ पावर कर दिया. उसके बाद चलो दिस इज पावर टू हाफ. अब बीच में तो प्लस है तो मैं हाफ दोनों को नहीं दे सकता. अगर बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो ही मैं वो पावर दोनों को दे सकता हूँ, isn't it? बीच में प्लस है. इसके बाद ये स्टेप से आगे कैसे बढ़े? सर होल पावर सर जैसे अभी ये होल स्क्वायर रूट है सर, तो मैंने 3 to the power 1/2 plus 2 into रूट 2 होल टू द पावर 1/2. हाँ हाँ सर वैसे करके किया पर सर. वो नहीं कर सकते. मेरा वही मैं आपको समझा रहा हूँ, वो नहीं कर सकते, राइट?
ये 1/2 पावर में दोनों को सेपरेटली नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि समझना, यहाँ पे वो पूरा उसका स्क्वायर रूट है, isn't it? Let me write this over here. See, this is your whole square root of 3 plus 2 root 2, isn't it? If it is whole square root of 3 plus 2 root 2, that means it is having half power of whole term 3 plus 2 root 2. अब ये हाफ पावर में दोनों को नहीं दे सकता क्योंकि बीच में प्लस है, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी ना, a प्लस बी, अगर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी है तो दैट कैन नॉट बी रिटर्न एज स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b एज वेल एज माइनस एज वेल एज स्क्वायर। ओके, so square root of a plus b cannot be written as square root of a plus square root of b. So is it clear, Nitin? Okay sir. Okay. चलो और डाउट देखते हैं। सो नव्या, इज द क्वेश्चन इज मोनोमियल सर? क्वेश्चन मोनोमियल नहीं है, जो आंसर आ रहा है वो मोनोमियल है नव्या। और मोनोमियल का अभी तक कोई लेना देना नहीं है जब तक हम वेरिएबल के साथ ना पढ़ें, तो ये सारे नंबर्स ही हैं, हम इसको मोनोमियल नहीं बोलेंगे। प्रज्वल इज टेलिंग सर आई डिडंट अंडरस्टैंड 1/√x। ओके प्रज्वल, 1/√x में मैंने बस कॉन्जुगेट लिया है, 1/√2 + 1। √2 + 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? √2 - 1। तो √2 - 1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो √2 - 1 into 1 is √2 - 1। a plus b, a minus b, a square minus b square, 2 - 1 आपका हो गया 1। So is it clear? Now, and Aditya is asking how to bring 2 in other question if it is not given. Yes, it is a good question. अब मान लो कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिया कि जिसमें रूट है, रूट के आगे 2 नहीं है, तो आप 2 कैसे लाएंगे, राइट? तो वो एक बार देख लो, वो वाले क्वेश्चंस आपको आरडी शर्मा में मिल जाएंगे। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपके आए भी एग्जाम में। ओके, सो सपोज आपको दिया गया है 5 + √3। ओके, अब डेफिनेटली यहाँ पे 2 नहीं है, राइट? तो मैं 2 कैसे लाऊंगा? तो एज सिंपल एज दैट, मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और 2 के साथ डिवाइड करूंगा। ओके, सो इट विल बी योर 5 प्लस, अब आपको कौन सा 2 चाहिए? आपको बाहर में सिर्फ न्यूमिनेटर में 2 चाहिए, डिनोमिनेटर में 2 नहीं चाहिए, राइट? अब ये डिनोमिनेटर वाले 2 को मुझे इस तरफ लेके जाना है, तो मैं उसको क्या करूंगा? 5 + 2 ऑलरेडी √3 है, √3 डिवाइड बाई 2 लिख दूंगा। अब मेरे पास फॉर्म कैसा है? मेरे पास फॉर्म है, वो फॉर्म होना चाहिए a ± स्क्वायर रूट b, मतलब ये वाली टर्म पूरी स्क्वायर, a ± 2 टाइम्स स्क्वायर रूट b, सॉरी, राइट? तो वो 2 के बाद पूरी टर्म स्क्वायर रूट में होनी चाहिए, तो ये 2 को मुझे स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना है। तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? तो 5 + 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर रूट ऑफ 4। सो दिस विल बी 5 + 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। अब 3/4 के मुझे ऐसे फैक्टर निकालने की प्लस करके 5 आए, राइट? जो हो सकता है फिलहाल ये क्वेश्चन में पॉसिबल ना हो। ओके, तो इसके फैक्टर निकल सकते हैं 1/2 एंड 3/2। तो 1/2 एंड 3/2 को अगर मैं ऐड करूँ तो 3 + 1 4, 4/2 विल बी 2। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं इसको 2 रख सकता हूँ, तो अगर ये 2 होगा तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली ये था, मेरा क्वेश्चन था 2 + √3 ओनली, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे 2 नहीं था, तो 2 लाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, फिर ये वाले 2 को मैंने इस तरफ रख दिया √2 के नीचे, √3 के नीचे। मेरा फॉर्म इस तरीके का होना चाहिए, a + 2 √b, तो a है प्लस 2 है, अब ये पूरा रूट के अंदर होना चाहिए, तो 2 को रूट के अंदर डालने के लिए √4 लिखा, और सिंस इट इज डिवीजन आई कैन टेक स्क्वायर रूट एज कॉमन, सो दिस विल बी 2 + 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3/4। अब 3/4 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिनका सम करके 2 आए। सो वी ऑल नो दैट 3 × 1 = 3 एंड 2 × 2 = 4, तो उसके फैक्टर्स निकलेंगे 1/2 एंड 3/2। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करो, 3 × 1 = 3 एंड 2 × 2 = 4, तो 3/4 आ रहा है, और इन दोनों का एडिशन करो तो 3 + 1 विल बी 4/2, सो इनका एडिशन आ रहा है 2। सो ये आपके फैक्टर्स निकलेंगे। तो ये आदित्य पी का क्वेश्चन था कि सर अगर 2 नहीं होगा तो हम कैसे लाएंगे? इस तरीके से लाएंगे। इज इट क्लियर आदित्य? नाउ नव्या, इफ because question 8 is like that, my question is like Aditya S, या आदित्य, मतलब क्या पूछ रहे हो नव्या? मुझे पता नहीं चला। क्वेश्चन 8 इज लाइक दैट, अच्छा हाँ हाँ, तो वो हो गया। ओके, तो मतलब 2 नहीं था। अक्षता इज आस्किंग सर व्हाट टू डू व्हेन देयर इज 4 + 2 √2। तो 4 + 2 √2 आएगा ही नहीं अक्षता, क्योंकि 4 + 2 √2 वाले केस में
2 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि उनका सम करके 4 आए, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो 4 प्लस 2 रूट 2 वाला क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन चाहिए जिसके लिए ये सारी चीजें पॉसिबल हो। ओके, सो इज इट क्लियर एवरीवन? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? हाँ Navya, because your question was same as like Aditya, right? So 1 minute. Mansa is telling, sir, can you repeat once again how to bring 2? Okay, Mansa. I think मैं 2 बार तो repeat किया है तो कर दूंगा. Yashash is asking if both the number are root, then it is not possible. Yashash, अगर दोनों number root होंगे तो we cannot find this. Okay, so let me repeat this concept of 2 again. So if I am having 2 plus root 2 plus root 3, मैं इसका 2 कभी नहीं निकाल पाऊंगा. Okay, ओके, तो अगर ये 2 प्लस रूट 3 है तो मैं इसका रूट कभी नहीं निकाल पाऊंगा, राइट? तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मेरा फॉर्म क्या होना चाहिए? ए प्लस और माइनस 2 रूट बी, मतलब इसके आगे 2 होना चाहिए। तो रूट 3 के आगे मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया और 2 को डिवाइड किया। अब मुझे सिर्फ रूट 3 के आगे वाला 2 चाहिए, उसके डिनोमिनेटर वाला 2 नहीं, तो वो मैंने इस तरफ दे दिया, तो वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2। फिर जो मुझे नंबर चाहिए वो कैसा चाहिए? ए प्लस और माइनस 2 रूट बी, मतलब 2 के बाद सारी चीज स्क्वायर रूट में होनी चाहिए। तो 2 के बाद ऑलरेडी ये रूट 3 तो है ही, अब 2 को मैं स्क्वायर रूट में कैसे डाल सकता हूँ? तो उसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 4। तो इन दोनों का स्क्वायर रूट कॉमन हो जाएगा, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। तो इस तरीके से ये पूरा कन्वर्ट हो गया a प्लस 2 रूट बी। अब b के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करके 2 आए, तो 3/4 का ऐसे फैक्टर 1/2 एंड 3/2 निकलेंगे जिनका प्लस करके 2 आएगा। सो इज इट क्लियर नाउ मानसा? राइट, एंड चंदन इज आस्किंग सर 5 प्लस 4/2 रूट 3, ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है चंदन। देन ऑल्सो लेट अस सी दैट। सो चंदन इज आस्किंग सर व्हाट हैपेंस इफ इट इज 5 प्लस 4/2 रूट 3। सी इफ इट इज 5 प्लस 4/2 रूट 3, तो सबसे पहले 2 2 4 हो जाएगा। सेकंड थिंग, मैंने आपको बोला डिनोमिनेटर में कभी भी आपका इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो उसको रेशनल में आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 2 टाइम्स, ओके, अंडर रूट 3/9। अब 3/9 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि प्लस करके आ जाए 5। ओके, सो 3/9 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि प्लस करके आ जाए 5। 3/9 के फैक्टर ज्यादा से ज्यादा आपके निकल सकते हैं 1/3 एंड 5/3, एंड 5 + 1 विल बी 6/3, 6/3 विल बी 2। सो क्वेश्चन आपका यहाँ पे 5 नहीं, अगर 2 होगा चंदन तो हो जाएगा, राइट? आपके क्वेश्चन में इधर 2 होना चाहिए। हाँ, अच्छा, रूट 3 आपका न्यूमिनेटर में है, 2 + 4 रूट 3, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन, तो 4/2 क्या है? 5 + 4/2 रूट 3 का मतलब क्या? आप ये बोल रहे हो 5 + 4/2 इंटू रूट 3, ऐसा बोल रहे हो? तो ये तो 2 2 से 4 हो ही गया, तो ये आपका हो गया 5 + 2 रूट 3। अब 3 के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करके 5 आए, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? सो आप ऐसा कर सकते हो, एटलीस्ट यहाँ पे 5 की जगह 4 होना चाहिए तो पॉसिबल है, बिकॉज 3 के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करके 4 आए तो वो पॉसिबल है। 3 1 3 एंड 3 + 1 4। ओके, conjugate of root 3 are both Prahlad, root 3 as well as minus root 3, both are conjugate of root 3. Okay, so this is the case. Okay, so everyone is clear till now? Okay, खत्म करें। Now what is homework of today's class? तो आज का होमवर्क है कि आपको ये 9M1 के जितने क्वेश्चंस में डाउट था पूरा खत्म कर देना है। इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क पूरा लिख देना है, एडवांस क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करने हैं। जो भी अदर बुक आप फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी तो सबको करना ही है एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स, सो एनसीईआरटी खत्म कर दो, राइट? इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर 9M02 पॉलिनोमियल्स। ओके, एंड दिस संडे विल बी हैविंग एग्जाम, आवर फर्स्ट एग्जाम ऑफ क्लास 9। ओके, सो बी रेडी फॉर इट। So best of luck students, start preparing for today itself. Okay, let us end this meeting. Thank you.